Hi. Um, this post is for mental health concerns, and I actually will go to Bangalore a little 3 5 days later. And yeah, I mean, generally, I will just say a little bit about my journey with my disorder, bipolar disorder. I suffer from that, and I'm going to talk about it a little bit awareness of what mental health concern can be in real life because ये मेरे लिए बहुत important है. So I will discuss about this, and I love talking to you all, sharing my life. So I hope you hear me out and listen to me till the last. Yeah. So it was 2013 when someone close to me passed away. I was very much hurting myself due to that experience a lot because I couldn't accept the death. I cannot accept the death even now. I feel like the emptiness that that person going away have left there is it is still there. It is still मतलब बुरा लगता है खुद को very बहुत ज़्यादा बुरा लगता है. तो हाँ, मैं उसके साथ-साथ मैं कोशिश करी थी कुछ बाद में कि मैं कुछ खुश रहूँ, खुद खुश रहूँ। मुझे खुशी चाहिए था हमेशा, मुझे बहुत हैप्पी रहना था बिकॉज़ मैं हैप्पी नहीं रह पाती थी इन पर्टिकुलर डे टू डे लाइफ़। एंड देन सिचुएशंस वर नॉट गुड इन स्कूल टू, सो दैट काइंड ऑफ अफेक्टेड मी। मतलब स्कूल में जो भी हुआ, चाहे उसको हम मतलब अभी बोल सकते हैं कि यार इसने मुझे गाली दिया या ये मेरे साथ इतना बुरा था, ये बुलिंग था, ये बॉडी शेमिंग था, ट्रोलिंग था, ये जो कुछ भी। बट रियल में जब हो रहा था तब समझ नहीं आ रहा था, तब आई वाज़ फिगरिंग इट आउट। अभी उसके बाद हमको अच्छे रिजल्ट्स भी लाने थे। आई गॉट 71% इन 10। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में थी, बहुत ज़्यादा हाथ पैर काँपता था, बट स्टिल आई डिड इट। Even in class 12, I had my panic attacks. In panic or anxiety attacks, I don't know what, but it felt like the world is ending. My breaths were uh, going so fast. I felt so tired. I felt so much in my in self. और उसी के चक्कर में मैंने बहुत कुछ हुआ। तो उसके बाद कॉलेज आ गया। अभी कॉलेज के पहले ना 12th में एक टीचर और या साइकोलॉजिस्ट कह लो वो मिली थी। तो शी एक्चुअली टोल्ड मी इन अ वेरी शुगर कोटिंग वे कि दिस इज़ अ टफ वर्ल्ड, यू हैव टू फेस इट, डोंट वरी, इट विल बी गुड एंड ऑल दीज थिंग्स. She knew that I was not in a good space. I was not good to myself. She knew that I had confident issues. मतलब मैं confident बिल्कुल नहीं थी. And she kind of tried to be good, but you know, it was such in a structural psychological setup कि कभी कभार थेरेपिस्ट अगर जितना भी चाहे उतना ज़्यादा मदद नहीं करते. एंड आई काइंड ऑफ जम्प्ड अप टू कॉलेज, एंड आई कॉलेज में जाने के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया. एक बार लॉकडाउन शुरू होने से आई काइंड ऑफ really like I effed up. Like I just don't know how to tell you, but I was feeling so tired every day. I was not able to speak. I was making YouTube videos, maybe a little bit far way or the other. Even I made my even I made what to say. I made reels a lot, and I wanted to be famous. I wanted to be well known, and this is the issue. I will talk it in another issue video. Ki how I am a people pleaser. I don't know how to stop it. And after that, if I stop and be like, I can't please you, also, I would feel guilty for it. I would always feel like I should be a people pleaser, which is not right because it just hamper my mental health. Because मैं दूसरों का मदद जितना भी करूँ, खुद का मदद करने के लिए सिर्फ खुद ही जिंदा रहती हूँ. सो दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज़ ऑन. अभी मैं कॉलेज में गई तो बहुत कुछ हो गया, मेरी तबीयत बिगड़ गई. और कॉलेजे की হচ্ছিল, मतलब कॉलेज में क्या हुआ जो मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग लगता था कि जो भी चीज़ बचपन से हुआ है, जो भी ट्रॉमा मेमोरीज़ या जो कुछ भी जो बचपन से मैंने फेस किया है, वो एक-एक करके ना मेरे को रात में नींद में सपने में आ रहा था कि ये बुरा हुआ, वो बुरा हुआ. एंड आई वाज़ जस्ट फीलिंग लाइक दिस हैपेंड यस्टरडे ओनली. मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि यस्टरडे नहीं, ये 4-5 साल की तनु की कहानी है, जो अभी 20 साल में लग रहा है कल ही हुआ था. आई रियली डिडन्ट नो. आई वाज़ लाइक very broken, and I kind of
told everyone, my parents also, they don't love me. And then I got into a very ugly chapter of my life, which is like मैं बहुत पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ शेयर करती हूँ. अभी अगर बोलूँ तो अभी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट दैट पर्सनल चैप्टर इज़ सो अगली दैट I felt like I need to end my life. This is how I felt. But I didn't end my life because I was kept under very scrutiny. मतलब अच्छे से मेरे को मम्मा पापा ने बहुत ख्याल रखा और कहीं ना कहीं मुझे टॉलरेट किया. और मैं टायर्ड हो गई थी तो कॉलेज में भी जाती नहीं थी, बट कॉलेज की टीचर्स भी अच्छी थे. दे ट्राई टू अंडरस्टैंड मी एंड दे काइंड ऑफ हेल्प्ड मी विथ माई थिंग. एंड ऐसे कर के आई काइंड ऑफ was going on, and then I took tablets for bipolar disorder. अब bipolar disorder के बारे में बात करते हैं कि bipolar disorder का क्या होता है. पहली बात तो आपका दिमाग बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है. मेरा जैसा होता था कि मैनिया शायद उसे कहते हैं कि दिमाग बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है. लाइक मैं आपके साथ अभी बात कर रही हूँ, so you can see that there is a calmness, there is stability, but that time I was losing my shit together. I was not able to function properly. Like मेरे को पता ही नहीं कि मैं कैसे ही इससे बाहर निकलूँ. और कभी कभार वो जो भौर टाइप हो जाता है कि माता चरी है कि आप अपने सिर को घुमाते हो बेवजह. मेरे को खुद को डिस्ट्रॉय करना था, सेल्फ हार्म करना. मेरे को लगा यही अच्छी बात है बिकॉज आई वॉज नॉट able to sit down with myself and talk properly to myself. I felt a lot and I felt that someone would hear me. That is why I came on YouTube. I kept on making videos. I keep on making videos with the hope that someday I will be heard because I want to be heard. I mean, I do not know how to tell it in another sense that am an attention seeker. I want to be heard. I want to be valued. I want to be seen by others people. मेरे को अच्छा लगता है. मेरे को अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. दिस इज वाई लाइक टुडे इन दिस रूम आई एम अलोन, बट आई स्टिल जस्ट हैव थॉट दैट रोज़ रोज़ करके आई विल ट्राई टू बी पर्टिकुलर विथ माई यूट्यूब वीडियोज़. क्या कोई काम कर जाए, कोई वीडियो तो हो जाएगा वायरल या कुछ अच्छा हो जाए. बिकॉज it's not just money, it's just a little bit appreciation that I want. कि मतलब क्या है एक चीज़ जो मुझे हमेशा कहीं ना कहीं और बुरी बात लगा कि कभी कभार जब मेरी ज़िंदगी को जीने की बात नहीं हो कर रहा था, लाइक व्हेन आई फेल्ट लाइक आई डोंट वांट टू लिव नॉर्मल डे टू डे लाइफ की चीज़ों को मैं एंजॉय नहीं कर पाती थी. लाइक मेरे स्ट्रगल्स को भी मुझे एंजॉय करना चाहिए, फेलियर्स को भी एंजॉय करना चाहिए. सब कुछ भी मैं कुछ एंजॉय नहीं कर पा रही थी. तब मैं बहुत डल थी. वीडियोस बनाती थी क्योंकि उसके बिना मुझे पता नहीं था क्या करूँ. आई यूज टू बी एक्सप्रेसिव, दैट वॉज माई कोपिंग मैकेनिज्म. बट विथ स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस आई एम इन सच अ पोजिशन वेर अगर लाइक यहाँ पे मैं आपके सामने बात कर रही हूँ तो मेरे को ये प्राउड फील होता है बोलने को कि नाउ व्हेन आई सिट डाउन आई एम लिविंग इन द प्रेजेंट. बिकॉज एक वक्त ऐसा हो गया था कि मैं प्रेजेंट में जी ही नहीं पा रही थी. कितना सब कुछ डर लगा था, ये हुआ वो हुआ, वो सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा है तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्या सही करूँ क्या नहीं करूँ. आई फेल्ट लाइक मैं ब्रोकन से ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. और इसी बीच कुछ लोग अच्छे आए, शायद अभी नहीं है. बट आई हैव टू डील इट, लाइक आई हैव टू डील विथ माई मेंटल प्रॉब्लम्स एंड दिस इज़ हाउ आई डील इट ऑल्सो. एंड आई वुड से दैट येस यू कैन बी इन डिप्रेशन, you can be in bipolar disorder, or you can have other illness like schizophrenia, borderline personality disorder, and so much more. But still, all of us are brave, and हम उससे बाहर आ सकते हैं. मैं यही बता रही हूँ. मतलब मैं जब बचपन में थी ना तब भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी स्कूल होगा शायद, देयर आई सॉ एन अवेयरनेस चैट एंड आई वांटेड टू बी इंक्लूडेड इन माय स्कूल. बट आई नेवर गॉट द चांस दैट कोई मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में स्कूल में बात करे. तो मेरे को बहुत ज़्यादा गिल्टी एंड बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल फील होता था कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, किसी और के साथ हुआ ही नहीं है. वो थोड़ा सा डर्टी फील होता है ना, वो बचपन से ही शुरू हो गया था. But slowly, now I feel like accepting myself, and this is why I'm creating these videos. That today
मुझे नहीं पता मैं कब वायरल होंगी, मुझे नहीं पता कुछ चीज़ें कब ठीक होगा, मुझसे मुझसे नहीं पता है कि मैं क्या ही करके सच में खुश रहूँगी। पर मैं स्ट्रगल तो कर पा रही हूँ, थोड़ा-सा तो चल फिर रही हूँ। और बैंगलोर में जाएँगे फिर से हम लोग निम्हांस में चेकअप करने के लिए। आई एम हैविंग बाइपोलर डिसऑर्डर, तो उसके लिए थोड़ा-सा चेकअप करना है। मेरा बाइपोलर डिसऑर्डर का चेकअप करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अभी भी इस बार जो ब्लड रिपोर्ट टेस्ट आए थे दैट इज़ अ लिटिल बिट लो, इट इज़ नॉट अंडर नॉर्मल रेंज। तो खाना ज़रूरी है टैबलेट्स, नहीं तो चीज़ें अच्छी नहीं होती। एंड या मीन इसी वजह से मेरे को कभी-कभार हाइंडसाइट में ये याद आ जाता है, व्हिच इज़ व्हाई आई जस्ट से इट दैट ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये मेरा मेंटल हेल्थ इलनेस है, ये अगर कोई आदमी जानेगा तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा या उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं हो जाऊँगी बिकॉज़ आई एम सफरिंग फ्रॉम अ critical mental disorder, and this is like a way of life. I'm not doing it for one day, I might have to do for every day of my life, तो उसको शायद मुझे वो चुनेगा नहीं। मुझे पता नहीं बहुत चीज़ें अलग आती है। आई थिंक कभी कभार मेरे को लगता है कि अगर मेरी लाइफ उतनी सिंपल होती तो अच्छी बात होती ना। मुझे इससे बाहर मतलब इतना दर्द हो गया, इतना सेंसिटिव हूँ मैं कि मुझे नहीं मालूम कैसे मैं ऐसे बाहर से निकलूँ इन सब चीज़ों से। बट येस, वन थिंग जो मैं आपसे अभी भी इतने 11 मिनट बात कर रही हूँ, तो इसमें इसके बीच जो मैं बताना चाहती हूँ कि नाउ व्हेन आई टॉक और व्हेन आई एक्सप्रेस, आई एम लेस स्केयर्ड, I'm less scared, and I'm more me. I just be me. I just try to be fulfilled. And yeah, I still get scared of losing people. I still miss Dida. I still do a lot of random weird shit talk. But still, I feel I value a little bit of me more than earlier. इसीलिए तो मुझे पता है कि मेरे को प्यार खुद से करने को प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो मैं खुद से प्यार करने की कोशिश करती हूँ और कहीं न कहीं मैं सच में बहुत ज़्यादा लाइवली फ़ील करती हूँ जब मैं बात करती हूँ। इसी वजह से रोज़ यहाँ पे बैठ के आई थिंक हर रोज़ ऐसे एक हैबिट बना लूँगी, एंड इवन आई हैव मेड वीडियोज़ हियर। सच-सच के अगर मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, तो एक मतलब अपना कुछ शेयर करना है आप लोगों के साथ। तो इट फील्स दैट मैं सिर्फ अकेली ही नहीं जा रही हूँ। आई एम नॉट ओनली वन। मे बी सम ऑफ यू विल वॉच द वीडियो एंड रिलेट विद सम पोर्शन ऑफ माई लाइफ। यू मे कमेंट अबाउट योर जर्नी, हाउ यू आर, यू कैन हैव इट। एंड पता नहीं मुझे कब तक अपने लाइफ के बारे में, या मैं कब तक, पता नहीं, देखती है। मतलब मैंने एक और वीडियो में जब बैंगलोर में थी उधर भी एक वीडियो बनाया था और बना के बोला था तभी कि थेरेपी लो या अच्छे लोगों के संग रहो। बट मुझे अच्छा से पता चल गया कि थेरेपी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इंक्लूडिंग टू बी विद गुड पीपल, बिकॉज थेरेपी से बहुत कुछ आप जान सकते हो, बहुत कुछ पहचान सकते हो, आप लाइटर फील कर सकते हो। Like I have been taking some group therapy sessions for 4 weeks. This week also it's there. तो आज ही है वो, तो उससे लाइटर होता है, मेरे को दिल थोड़ा सा हल्का हो जाता है। एंड अच्छा है, पता नहीं। I can only tell you that even when I graduated, I was suffering very much due to my mental health. एंड मेरा मेंटल हेल्थ ऐसा था कि मेरा बॉडी बहुत थकान जैसा फील करता था। आई वॉज नॉट लाइवली, एंड इवन दो आई वॉज लाइवली, आई वॉज स्कियर्ड। आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक माई हर्ट आउट, विच आई ट्राई टू डू राइट नाउ। दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, एंड होपफुली यू अंडरस्टैंड मी दैट यू नो, मतलब कभी कभार मेरा ये कोपिंग मैकेनिज्म बहुत अपना है कि अभी जैसे मैंने बात किया ना, तो मैं कम रो रही हूँ, क्योंकि ऐसे एक वक्त था कि मैं हर बार रोती थी ये सोच के कि मैं कितनी एबनॉर्मल हूँ, मेरे को कोई प्यार नहीं करेगा। और वो हो जाता है, वो अपने दिमाग में चल जाता है। बट थोड़ा सा उससे बाहर आने की कोशिश करती हूँ, एंड दिस इज़ वाई आई कीप मेकिंग वीडियोज़, एंड होपफुली वन डे पीपल विल नो मी एंड आई वॉन्ट टू बी नोन। यही बताना है। और आप बताइए, आप कैसे डील करते हैं इफ़ यू सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर, देन व्हाट यू डू? आपको क्या मतलब आपका क्या जर्नी है मेंटल हेल्थ, आपको क्या लगता है? मुझे तो ये चीज़ है कि मैंने पहले भी बोला कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना मेरे लिए एक ऑप्शन नहीं है, प्रायोरिटी है।
because I have been suffering from mental health illness since my childhood. I could have done and be a psychologist today, but the point is that amount of turmoil in my head was such कि जब भी पढ़ना था तभी वो नहीं मिला, because I was only suffering from a lot of issues. I couldn't read properly. Now if I start, I may do good, बट नाउ टाइम हैज़ क्रॉस्ड, समय बीत गया है, अभी बीएड करने का प्लान है, तो पता नहीं उसके साथ साथ ये वीडियोस भी देखते हुए प्लान है कि कुछ अच्छा हो जाए, होपिंग फॉर द बेस्ट, कीपिंग माई फिंगर क्रॉस्ड, एंड आई होप यू कंटेंटली लव माई कंटेंट। कंटेंट से कंटेंट को पसंद कीजिए मेरे, और मुझे बात करना अच्छा लगता है, तो अगर आपको सुनना अच्छा लगता है तो शुक्रिया, सुन लीजिए और मुझे सब्सक्राइब कर भी लीजिए प्लीज़। और मेरे साथ रहो यार, मुझे अच्छा लगता है जब मैं कुछ अपना शेयर करूँगी और आपको भी कुछ अब मेरे बारे में पता चलेगा। ठीक है।